Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. Today in this video, we will do the exercises of lesson number 6 Eklavya. So, let's get started. Exercise A. Fill in the blanks. Number 1. Dash was a brave, handsome boy in the forests of हस्तिनापुरा. कौन था हस्तिनापुरा के जंगल का हैंडसम मतलब खूबसूरत दिखने वाला और बहादुर लड़का? कौन था बच्चों? एकलव्य. सो हेयर वी विल राइट एकलव्य. EKLAVYA, Eklavya. Number 2. Eklavya desired to become a dash of the great द्रोणाचार्य. एकलव्य के मन में क्या ख्वाहिश थी? द्रोणाचार्य का क्या बनना चाहता था वो? शिष्य. तो here in the blank we will write disciple. DISCIPLE, disciple. Number 3. Dash refused to teach एकलव्य. किसने एकलव्य को सिखाने के लिए मना किया? द्रोणाचार्य. तो हेयर वी विल राइट द्रोणाचार्य. DRONACHARYA, द्रोणाचार्य. Number 4. Eklavya still held द्रोणाचार्य in dash and began practicing before द्रोणाचार्य's mud statue. एकलव्य अभी भी द्रोणाचार्य के लिए उसके मन में क्या थी? बहुत इज्जत. तो हेयर इन द ब्लैंक वी विल राइट हाई स्टीम. HIGH, हाई, ESTEEM, हाई स्टीम. और उसने क्या किया था? द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति के आगे प्रैक्टिस करनी शुरू की थी. Number 5. A dog disturbed Eklavya while he was practicing and he fired dash arrows and filled the dog's mouth without injuring it. एकलव्य जब प्रैक्टिस कर रहा था तो कुत्ते ने उसको डिस्टर्ब किया. तो एकलव्य ने कितने एरोस चलाए थे उसका मुंह बंद करने के लिए और जैसे उसको नुकसान भी नहीं हो? 7. सो हेयर इन द ब्लैंक वी विल राइट 7. SEVEN, 7. Exercise B. Match the following. Column A and column B are there. We have to match the sentences from column A to column B. Number 1. एकलव्य wanted. एकलव्य क्या चाहता था? So the answer is C. To become the disciple of the great द्रोणाचार्य. एकलव्य द्रोणाचार्य के शिष्य बनना चाहते थे. Number 2. द्रोणास गुरुकुल was. इसका आंसर होगा A, कॉलम B में. A magical place where ordinary boys were turned into mighty warriors. गुरु द्रोणा का गुरुकुल मतलब उनकी जो पाठशाला थी या जहाँ पे बच्चे रह के शिक्षा लेते थे वो एक जादुई जगह थी. जादुई जगह मतलब वो इतनी अच्छी तरह से सिखाते थे कि मामूली से लड़के भी एक बहुत अच्छे जंग करने वाले योद्धा बन जाते थे. Number 3. एकलव्य's father was a loving man as he blazed. एकलव्य के फादर बहुत अच्छे इंसान थे. उन्होंने इसे आशीर्वाद दिया. इसका आंसर होगा B. His son and sent him on his way to द्रोणास गुरुकुल. उन्होंने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया और उसको द्रोणाचार्य के गुरुकुल में भेज दिया. Number 4. The royal teacher किसके लिए कहा गया है? Refused to teach एकलव्य the wonderful art of archery. जो रॉयल टीचर है उसने क्या किया? एकलव्य को रिफ्यूज़ किया. क्या सिखाने के लिए? आर्चरी, तीर चलाना सिखाने के लिए मना कर दिया. Number 5. The sage was humbled by एकलव्य. सेज यहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य के लिए बोला गया है. वो खुश हुआ और उसे आशीर्वाद दिया उसकी कुर्बानी के लिए. Humbled by एकलव्य. So here the answer is D. Now exercise C. Put a tick if the sentence is right and a cross if it is wrong. Number 1.
Eklavya was the son of a tribal chief of the western part of the forest of Hastinapur. एकलव्य हस्तिनापुर के जंगल के ट्राइबल चीफ का बेटा था. Yes, it is right. So here in the box we will put tick. Number 2. The innocent tribal boy was very happy when he was refused to be taught by द्रोणाचार्य. Innocent boy, tribal boy, वो बहुत खुश हुआ जब उसे द्रोणाचार्य ने मना किया कि मैं आपको तीर चलाना नहीं सिखा सकता. क्या ये सही है? नहीं. It is wrong. So here in the box we will put cross. Number 3. Dronacharya along with his disciples found a dark-skinned man dressed all in black, his body covered with filth and hair in a matted locks. Yes, it is right. So here in the box we will tick right. Number 4. The sage was upset that his promise to Prince Arjuna was not going to be fulfilled. सेज यहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य के लिए बोला गया है. वो अपसेट हो गए क्योंकि उन्होंने राजकुमार अर्जुन को प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें सबसे बड़ा धनुर्धर मतलब तीर चलाने वाला इंसान बनाएंगे. पर जैसे कि अभी एकलव्य उससे बहुत होशियार आर्चर बन गया था, तो ये देखकर द्रोणाचार्य क्या हुए थे? सेज अपसेट हो गए थे. येस, इट इज़ राइट. सो इन द बॉक्स वी विल पुट टिक. नंबर 5. एकलव्य गेव हिज सेवर्ड थम टू द्रोणाचार्य एज अ गुरु दक्षिणा. एकलव्य ने अपना कटा हुआ अंगूठा गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में दिया. येस, इट इज़ राइट. सो इन द बॉक्स वी विल टिक right. Now exercise D. Short answer questions. Number 1. Why was Eklavya not happy? एकलव्य खुश क्यों नहीं था? The answer is Eklavya was not happy for his burning desire to become the disciple of Dronacharya was not fulfilled. एकलव्य इसलिए खुश नहीं था क्योंकि उसकी बहुत इच्छा थी कि वो गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य बने, जो वो उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई. नंबर 2. What did Eklavya see when he reached द्रोणाचार्य's गुरुकुल? एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य के गुरुकुल में क्या देखा जब वो वहाँ गए थे? The answer is Eklavya saw that disciples were practicing shooting arrows with their bows in the yard. एकलव्य ने देखा कि राजकुमार वहाँ पे राजकुमार शिष्य जो थे वो वहाँ पे तीर चला रहे थे वहीं यार्ड में, मतलब वहाँ पे जो थोड़ी सी बाहर स्पेस होती है उसे यार्ड बोलते हैं. नंबर 3. Why was the innocent tribal boy deeply hurt? यहाँ पे innocent tribal boy एकलव्य के लिए बोला गया है, तो वो क्यों हर्ट हुआ? The answer is the innocent tribal boy was deeply hurt because he was refused to teach archery by Dronacharya, as he was tribal hunter and belonged to the lowest social community. उसे दुख इसलिए हुआ क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने उसे अपना शिष्य मानने से इनकार कर दिया और आर्चरी सिखाने के लिए मना कर दिया क्योंकि वो छोटी जाति का था. नंबर 4. What did Eklavya do when Dronacharya refused to teach him? एकलव्य ने क्या किया जब द्रोणाचार्य ने उन्हें अपना शिष्य बनाने के लिए इनकार कर दिया या मना कर दिया? The answer is Eklavya made a statue of Dronacharya and practiced archery before his guru. एकलव्य ने क्या किया? मिट्टी लेके गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और उसे अपना गुरु मानकर उसके आगे प्रैक्टिस करने लगा, तीर चलाने की प्रैक्टिस करने लगा. क्वेश्चन नंबर 5. वाई वॉज अर्जुना एंग्री? अर्जुन को गुस्सा क्यों आया? द आंसर इज अर्जुना वॉज promised by द्रोणाचार्य that he was the most skillful archer. अर्जुना को द्रोणाचार्य ने ये प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि अर्जुना सबसे स्किलफुल आर्चर मतलब तीर चलाने वाला होगा. बट इट प्रूव्ड रॉन्ग. ये बात गलत हो गई.
When एकलव्य was found better than अर्जुना, जब देखा गया कि एकलव्य अर्जुना से भी अच्छा आर्चर है. Now exercise E, long answer questions. Number 2, what is the moral of the story? इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है? The answer is we should not back out from our duty. हमें अपने काम से पीछे नहीं हटना चाहिए. And promise that we make, और अपने वायदे से भी नहीं मुकरना चाहिए. इसका मतलब है हम जो भी प्रॉमिस करें वो निभाना चाहिए और अपने कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए. नंबर 4, डिड द्रोणास रिफ्यूजल स्टॉप एकलव्य फ्रॉम प्रैक्टिसिंग? क्या द्रोणा ने जब मना किया एकलव्य को तो एकलव्य ने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया? व्हाट डिड ही डू देन? उसने तब क्या किया? द आंसर इज नो, नहीं. द एकलव्य वॉज क्वाइट डिटरमाइंड, मतलब जो उसने मन में ठाना था वो करना था उसको. ही डिड नॉट स्टॉप प्रैक्टिसिंग, उसने प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ा. ही मेड अ स्टैचू ऑफ द्रोणाचार्य एंड प्रैक्टिस्ड इन फ्रंट ऑफ इट, उसने द्रोणाचार्य के स्टैचू के आगे प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड एकलव्य डू व्हेन द डॉग कंटिन्यूड टू डिस्टर्ब हिम विथ इट्स बार्किंग? एकलव्य ने क्या किया जब कंटिन्यूस डॉग उसे डिस्टर्ब कर रहा था? द आंसर इज बीइंग डिस्टर्ब बाय कंटिन्यूस बार्किंग ऑफ अ डॉग, एकलव्य फायर्ड 7 arrows and filled the dog's mouth without being injured. जब कुत्ते की भौंकने की वजह से एकलव्य डिस्टर्ब हो रहे थे तो उन्होंने एक के पीछे एक लगातार 7 एरोस चलाए जो कुत्ते के मुंह में जाके लगे और उसे इंजरी भी नहीं हुई. नाउ एक्सरसाइज F, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्सप्लेन दीज लाइन्स विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. इसकी जगह पे हम हेडिंग देंगे हु सेड टू whom. नंबर 1, प्लीज एक्सेप्ट मी एज योर डिसिपल एंड टीच मी द वंडरफुल आर्ट ऑफ आर्चरी. आप मुझे अपना शिष्य कबूल कीजिए और मुझे आर्चरी की कला दीजिए, मतलब तीर चलाने की कला सिखाइए. ये किसने बोला? द आंसर इज एकलव्य सेड टू द्रोणाचार्य. एकलव्य ने द्रोणाचार्य को बोला. नंबर 2, यू रिफ्यूज टू टीच मी बट यूर स्टैचू डिड नॉट. आपने मुझे सिखाने के लिए मना किया पर आपकी मूर्ति ने नहीं. थैंक्स टू इट, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ. आई हैव बिकम अ गुड आर्चर, मैं अभी एक अच्छा तीर चलाने वाला बन गया हूँ. द आंसर इज एकलव्य सेड टू द्रोणाचार्य. ये शब्द एकलव्य ने द्रोणाचार्य को बोले. नंबर 3, हेयर इज माई गुरु दक्षिणा. ये लीजिए मेरी गुरु दक्षिणा. द आंसर इज एकलव्य सेड टू द्रोणाचार्य. Now students, you have to write all these exercises in your book and notebook.